Hi, Vino. How are you? Hi Rohit, I am fine. How are you? I'm also fine. So, can you give quick introduction about yourself? Yeah, sure. So, hello guys. Myself Abhinav Avasthi. I am currently pursuing third year in IT from HBDU Kanpur. I am an upcoming SD intern at LinkedIn. I'm currently working as a DSA mentor at Geeks for Geeks. I'm a five-star coach chef, expert coach force, and ICPC regionalist. Oh, that's a nice introduction. Overall, you're a competitive programmer, right? And you Yeah, love I coding. have a profile. I have a profile of a competitive programmer, and yeah, I have done some development too, but more of CP. So, can you give a complete interview experience about LinkedIn step by step, like from O8 to last interview experience? Sure. So it was like that. I have received the link. So one of my friends sent me the link to apply here, and it was like I received the link in mid or start of September, I think. Then I filled the form. Then I received a mail for OA from LinkedIn, and the OA was on 1st October. I still remember the date, 1st October. So on 1st of October, I have attempted the OA. The OA was, I can say that it's for easy medium. There were two coding problems and 15 MCQ problems were there. And that was like key coding problem. One was easy, one was medium. One was from strings, one was from sliding window. So these two problems were there. And apart from that, there were 15 MCQs, which were basically from the basics of coding, coding fundamentals, aptitude, and some reasonings were there. So that was all for the MCQ. So basically, there was 90 minutes time for that particular coding round, and luckily I have attempted in some 50 to 55 minutes, and that is why there was an edge from my side that I have attempted all the problems and that too in less time. After that, because then in October there was festival season like Diwali and the things was there, so that is why there was a gap in between, and it was like 40 days of gap. Or I just thought कि I think I got rejected कि वहां से कोई mail नहीं था. There was no reply from their side, so I just think कि I think that I got a rejection or something like that. But finally, after 40 days, I got a mail from LinkedIn that yeah, you are shortlisted for the OA, and now you are having your interview in some 3 or 4 days. So it was like that. I have received the mail on 11th of, or I think 9th of November, and then I was having interview on I think it was like 15th of November. So means I was having 4 or 5 days. And there was written that in the interview you will be asked DSA fundamentals only. मतलब वहाँ लिखा हुआ है that only DSA will be asked, none other than that. Okay. So yeah, in that 4 or 5 days, I just prepared on the DSA part. मैंने DSA पढ़ा. DSA में मैंने because there was I have just seen the past questions जो पूछे गए थे LinkedIn में. So I've seen that graph, trees और DP से काफी questions पूछे गए थे LinkedIn में. So I have to focus on graph, trees and DP. अगर मैं बात करूँ मैं DP थोड़ी सी ठीक थी because DP was something which is good in CP also. CP में काफी पूछी जाती है. So DP was thing which I was able to solve, but फिर भी मैंने रिवीजन कर लिया थोड़ा सा जो बेसिक डीपी प्रॉब्लम्स हैं. I've done revision of that using Stiver's playlist and some other stuff from YouTube and other thing. After that, there was graphs and tree. I'm really saying my graph and tree was quite weak. Means the hard I was having difficulty in solving hard problems of graph and tree. That was my weakness at that time. Because of which I just started practicing the hard problems of graph and tree, which are arcs in LinkedIn or which are basically common some problems. So that was so I basically spent that 3 4 days in attempting these some other topics like priority review is also there, which I've done. Heaps were there, and some other basic topics which were weak from my side. I worked on that topic. After that, finally there was an interview, and in the interview they asked two problems to me. First was a easy medium problem. It was of again string string. Okay, and that problem I have solved earlier. So I was not having any difficulty in solving the problem. I just solved the problem in very. I just got the logic just after two minutes after seeing the problem statement. But yeah, I took some time to explain run the dry run and everything. So it was like I have done that problem in 20 to 25 minutes. After that, the next problem was a lead code hard problem. The So topic was topic was priority queue. vertical. So actually, the problem was that there were case sorted list given. So everyone
everyone will think that case sorted list means you have to merge case sorted list. That is a very common Yes, problem. yes, But the problem was we have to find shortest range between case sorted list. This was the problem, and that is the lead code hard problem. And I haven't solved this problem earlier. Okay, so that was a very new problem for me. That was really hard. So first of all, in the first 5 minutes, I was having no clue what to do, what to not do. Then they just asked me to write the brute force approach. So I just started with the brute force approach, and I used binary search there because there was sorted list. So I used binary search and recursion. I mixed up with a binary search recursion. So I just written that particular recursive solution and the binary search solution for it. While writing recursive solution, I got to know that yeah, because it is solvable by recursion, we can also solve it using DP. So I just gave them the approach that yeah, we can memorize this recursion problem and we can convert it into a DP problem. And that is what I've done there. So it was fine. Means I was able to solve the second problem too, but the complexity of that was quite high because DP approach was also taking I think n squared log n. Log n for binary search, n squared for the DP. So it was having n squared log n time again. So they just asked me that if I can solve the problem in more efficient way. I was having some doubt, and there was a hint that if we can use any data structure. So I think that which data structure. So just clicked on my mind that we can use priority queue here because that was something similar to it. And luckily, that problem was solved using priority queue. Then we were not having much time, so I just give them the basic idea how I can solve it using the priority queue, just a pseudo code up for it, and then she was just convinced with it that yeah, it's fine. So this was all about my technical interview. After that, I just got a mail that evening only that now I have a behavioral round, which is called a host manager round, where they will ask about your projects, your college, and everything else. Your resume basically. In that behavioral round, it was like they first asked me about my uh, project. So there was a project which was a live project, which is notes.cacds.com. It was a project from which is a live project from me. They just asked me about that, and there were some basic points of the project. They just asked that, are you still working on that project? Okay. What are your plans regarding that project in future? Why you have built this project? Everything that particular thing. After that, so basically they asked they basically in interviews in LinkedIn interview, uh, interview generally asks two basic projects from your resume. But because I was having an intensive experience at Xeon, so they basically asked me about my intensive experience, that what you have done at Xeon. So then I told her, yeah, in Xeon, I basically worked on this tech stack on React, on Node.js, and they just asked me again the same thing, what you learned from your internship and the basic thing. I was just able to answer them. After that, there was very basic question that about the college, what are your subjects, what is your favorite data set. It means some very basic problem which you have to just give your answer by your own, whatever you think of it. And after that, I think that was it. This problem was quite nervous for me because in DSA, you know that they will ask me DSA, so I have to prepare for it. yes, yes. But in host manager round, it was like whatever what I was having no idea that वो क्या पूछेंगे. That was the thing. But finally, that interview also goes fine. And after one day, I got a call from recruiter that yeah, I have got the offer. So that was it. Like, what is your feeling like? कैसा फील कर रहे थे तुम मतलब पहला इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी वो भी रिसेशन में व्हाट वाज योर फीलिंग Means actually it was like on 17th of October I gave the last round, which is the host manager round, and on 18th of October it was like morning 10 a.m. I was just woke up and my recruiter called me that yeah Abhinav, we are very happy to give you the offer for this opportunity. I was like that. I was not having anything in my mind. Okay, ma'am. Yes, ma'am. I was just replying like this. And really, I was really happy because I know the importance of that particular internship because during the decision season, during the layoffs, it's very difficult. And even I was having no clue. It was like just a gift for me that yeah, I got the intern at this particular season when we have layoffs, we have recession, we have a hiring freeze. Okay, no big tech companies like Amazon, Google, all the hiring are freeze currently, and in that time I've got an opportunity that was actually a thing of very great luck for me. And I was like
very, I was very happy at that time. Very happy at that time. I was just thankful to everyone who supported me, and that was it. एंड आई कैन से लाइक लक तो है ही, लेकिन यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। लाइक हार्ड वर्क कहीं ना कहीं काम तो आता ही है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो अलग अलग जगह पे, तो एक्सपीरियंस काम आता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। क्योंकि आप लोग Thanks. तुम्हारे अपॉर्चुनिटी से बहुत लोगों को लगेगा कि कैसे हार्ड वर्क करके, और लक का थोड़ा साथ तो अभी मिलना चाहिए, बिना लक के तो नहीं होगा। लेकिन वो जो हार्ड हाँ, वर्क होता है, लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो कर लेंगे। तो ये तो है। हार्ड वर्क करना है तो मतलब अभिनव जैसा करना है। आपको अपना बेस्ट देना होता है, आई थिंक। और अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो तो फिर आपका थोड़ा बहुत लग, जब कभी ना कभी तो हो जाता है, मे बी थोड़ा लेट हो, थोड़ा जल्दी हो, बट हो जाता है। बट आपको अपना बेस्ट देना होगा, वो तो होता ही है। नाइस नाइस, मतलब पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा लगा। तो अब जो भी लिंक्डइन या फिर कहीं पे भी अभी जॉब पाना चाहते हैं, अभी तो है मेनली सबको जॉब पाना है कैसे भी, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि कभी फिर रिसेशन खत्म नहीं होगा, बाद में कभी ना कभी खत्म होगा, फिर हायरिंग तेज होगा। तो उस टाइम जो तैयार रहेगा कि हाँ मेरे पास स्किल है और मैं रेडी हूँ इंटरव्यू के लिए, तो उस टाइम जो रेडी रहेगा फिर उसको हायरिंग फ्री स्टार्ट हो जाएगा, जैसे 2022 में हुआ था। एकदम लगातार हायरिंग हो रही थी, तो हायरिंग फिर स्टार्ट होगा उसी स्पीड में, लेकिन अभी टाइम श्योर। लगेगा। हाँ, अभी थोड़ा टाइम है, तब तक के लिए यू गाइस कैन इंक्रीज योर स्किल्स, अपनी स्किल्स और अच्छी करो, और अच्छा स्टैंड आउट करो बाकी लोगों से अपनी स्किल्स को इंक्रीज करके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मतलब इसके लिए वो बोल सकता हूँ कि अगर तब तक अगर डिसीजन बंद है और डिसीजन हायरिंग बंद है, तो अपनी स्किल्स पे काम करो ताकि और अच्छा कर पाओ अपने आप को। And now the next question is like, suppose any student watching you from any batch, like first year, second year, third year, or fourth year, and just want to become a entry software engineer, yeah, entry level software engineer. Like, tell me step by step process, like how they can grab a job of entry level software engineer. जॉब ऑफ एंट्री Uh, लेवल। yeah. ओके। So we are considering as D1 job, because तुम और मैं उसी लेवल का जानते हैं, हम लोग डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट का नहीं जानते। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे श्योर। कि किसी को SD1 बनना है तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा, कोई भी बैच का, मतलब कोई भी ईयर का। देखो, एसडी के लिए आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग टॉप टेक कंपनीज की बात करें तो डीएसए इज इम्पोर्टेंट। अगर स्टार्टअप्स में इतना नहीं पूछते हैं, बट टॉप कंपनीज की बात करें, लाइक मैंने अभी लिंक्डइन दिया या कोई भी टॉप कंपनी की बात करें, तो डीएसए इज समथिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि पहला ओए एंड टेक्निकल इंटरव्यू इट इन्वॉल्व्स डीएसए ओनली। So if you have to clear the starting rounds like OA and the technical interview of a company, you have to be good at DSA. This is the first thing. I will not say CP is very important. CP is not compulsory, but yeah, it is an advantage in OAs and other things. If you are giving an OA और आपने CP पहले करी हुई तो थोड़ा सा फायदा मिलता है. But overall, it's not compulsory. But DSA is obviously compulsory for good tech company. Now, the next thing is development. You should have a development skill in any of the domain. Maybe a web development, app development. कुछ तो होना चाहिए एक, because at the last you are going to work as a developer only in that organization. Maybe a front end developer, a back end developer, database management developer, whatever, DevOps, whatever. But DevOps तो एक अलग चीज होगी। मैं अगर मैं XD की बात करें, मुझे इतना पता नहीं है। So एक तो डेवलपर आपको होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद कोर सब्जेक्ट, बिकॉज फुल टाइम अपॉर्चुनिटी के लिए कोर सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपको एज एस डी है तो फिर CN हो गया, DBMS हो गया, OS हो गया, UPS हो गया। These core subjects, theoretical subjects are also really important for the full time opportunities as SD. And at last, I will say there are some extra topics जो आपको सवाकियत से अलग बनाएंगे, that will give a edge in your resume, like system design. System design is currently one of the important topic if you want to if you want to apply for a company. Just like recently, I've just talked to a person who got who got a full time offer from Medianet and Cred, and there also system design was asked. In LinkedIn too, in full time, I think system design is asked. So I think that in current scenario, for full time offer, system design is plays a very important role. So that is should be also, I एट think, लीस्ट लो लेवल good. डिजाइन। Yeah, low level, I think. So it is an important thing, I think, for current scenario. मतलब अब जो भी कर रहे हैं उसके साथ लो लेवल डिजाइन भी स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अब बहुत सारी कंपनी स्टार्ट कर दी है वो पूछना, मतलब But फॉर एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट। exactly. Means I think that it will become equivalent to DSA in some time. Just like the companies are asking DSA, they will also ask system design in some time. So it is going to be a very important. तो अभी रिसेशन में जितना पढ़ना है पढ़ लेना है, क्योंकि फिर नेक्स्ट जब हायरिंग बाढ़ तेज होगी तो फिर सब स्पीड में भागने लगेंगे।
एग्जैक्टली, सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट अगर हायरिंग तेज होगी तो लोग भी ज्यादा होंगे, हाँ। तो कंपटीशन भी ज्यादा होगा। ऐसा नहीं कंपटीशन कम होगा कि आपको सबको जॉब मिल जाएगी। तो उस समय अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो आपको अपना रिज्यूमे और अच्छा करना पड़ेगा। तो जितने में एक्स्ट्रा हो सके, ठीक है, उतनी आप इसको स्किल्स में ऐड करनी पड़ेंगी। सिस्टम डिजाइन हो, डीएसए हो, डेवलपमेंट हो, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एज लेके चलना पड़ेगा। और तब तक के लिए अगर आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही है तो आप छोटे मोटे स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप गेन करने के लिए आप काम कर सकते हो। दैट्स अ गुड थिंग। नाइस। जैसे मैं एक लिंक्डइन पे आज एक देख रहा था कि कोई बल्ब का जो लाइट है वो चेंज कर रहा था म्यूजिक के हिसाब से। वो एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, उसका नाम भूल गया, एस टी ग्रेट। वन हैप्पी या कुछ कंपनी में है। वो ओके, ग्रेट। एक म्यूजिक का लाइट बदल रहा था। वो अपने म्यूजिक जैसा है उसका लाइट उस हिसाब से बदल रहा था, कोड लिखा था वो। तो ग्रेट, मतलब ये पाइथन और आईटी काफी इस समय ऐसा चल रहा आईओटी, है। हाँ हाँ। आईओटी का ग्रेट, मतलब बहुत इस समय, क्योंकि अब ये है कि अगर मतलब अगर आप कोई बहुत बड़ी कंपनी में भी नहीं हो, बट अगर आप खुद से काफी कुछ कर रहे हो तो अगला आपको मिलने वाला है। अमेजिंग प्रोजेक्ट अगर ऐसा बना के कोई डाल दे लाइव, तो रिक्रूटर स्टार्टअप का जस्ट तुमको तुरंत कॉल कर देगा कि मेरे कंपनी में आओ। ऐसा ऐसा फीचर एग्जैक्टली, देखेगा तो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो नाउ like how do you think recession actually impacted you, and how do you handle recession and rejection both? हाँ, so it's a really nice problem, nice question actually, Rohit. So I think recession ने मुझे तो काफी affect किया है. It affects me a lot. Like what I thought in my second year, that in third year I will appear for Amazon internship, I will appear for Google internship, but all the internships are freeze. Amazon की 2 month 6 month internship का कोई भी हायरिंग नहीं हुई ऑफ कैंपस। गूगल ने अपने ऑफ कैंपस बीच कर दी। ओपनिंग तो निकाली बट फ्रीज कर दी। मेरा रिज्यूमे अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है, रिजेक्शन भी नहीं आया, मैं फ्रीज ही है एक तरीके से। एंड मैं बताऊं, सो 10% हो गई थी जो हायरिंग होती है, मैं सिर्फ 10% हायरिंग कर रही थी कंपनी ऑफ कैंपस। एंड बिकॉज बीइंग फ्रॉम अ लो टायर कॉलेज, लो टीयर कॉलेज, आई वाज नॉट हैविंग मच ऑन कैंपस। मतलब इंटर्नशिप तो ऑन कैंपस होती ही नहीं है। Yes. कोई कंपनी नहीं आती इंटर्नशिप के, मतलब इंटर्नशिप का मतलब ही नहीं है हमारे कॉलेज में कि थर्ड ईयर में कुछ मिलेगा। सिर्फ फोर्थ ईयर ही होता है जो होता है। सो इट वाज लाइक मुझे कुछ करना था तो वो ऑफ कैंपस ही करना था। लास्ट ईयर मेरे सीनियर्स ने, कुछ ने हैकर अर्थ पे, कुछ ने कोऑर्डिनेशन तक भी इंटर्नशिप क्रैक करके रखी हुई थी। बट इस साल के थोड़ा सा टफ था बिकॉज अपॉर्चुनिटीज 10% हो गई थी। सो थोड़ा सा टफ तो था ही। सो दैट वाज अ थिंग। बट एट द लास्ट यही हुआ कि इफ आई विल से, बस आपको देखना पड़ता है। रिजेक्शन तो देखो आते हैं बट आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। ट्राई करते जाना है, अपनी स्किल्स इंप्रूव करो, जहां भी मिले अपॉर्चुनिटी अप्लाई कर दो। और एक्टिव रहो चीजों पे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आएगा कुछ ना कुछ, आपको वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, आई थिंक। तो आपने दोनों चीज हैंडल किया, हम लोग तो सिर्फ रिजेक्शन हैंडल किए थे। आप रिसेशन और रिजेक्शन दोनों हैंडल कर रहे हो। एग्जैक्टली, दोनों हैंडल करना मतलब वही है। ऑब्वियस सी बात है, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा यार, कभी भी वो एक्टिव तो रहना पड़ेगा। कौन से अपॉर्चुनिटी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। एंड बस ये है कि रिसेशन की वजह से थोड़ी अपॉर्चुनिटीज कम हो गई थी, थोड़ा लो परसेंटेज था हायरिंग का। बट या समहाउ वी मैनेज्ड। मतलब अब एक ही अपॉर्चुनिटी की एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे एज अ मीडियम रह के कुछ नहीं होने वाला। मतलब बहुत तेज भागना होगा इस टाइम। सिचुएशन बहुत खराब है अभी। वही, मतलब वही मैंने बोला है आपसे कि आपके साथ 10 और लोग भी हैं जो compete कर रहे हैं सेम जॉब के लिए। तो अगर आपको उनसे एक स्टैंड आउट करना है, आपको अगर टॉप पे आना है, यू हैव टू ऐड समथिंग न्यू इन योर रिज्यूमे, यू हैव टू ऐड समथिंग न्यू इन योर स्किल्स। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। That's nice. So now next question is like three best experience of your life. Like अभी तक जितना तीन बेस्ट एक्सपीरियंस अभी तक का बेस्ट मोमेंट क्या है? थ्री बेस्ट एक्सपीरियंस, ओके, सो आई हैव टू थिंक अबाउट इट। तो अगर मैं ऐसे थोड़ा पीछे से बात करूं तो अभी लास्ट का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली इंटर्न के बाद मैं बोल सकता हूँ कि जब मुझे ऑफर मिला। एंड उसके बाद था, क्योंकि एक तो ऑफर मिलना इज डिफरेंट थिंग, उसके बाद जो आपकी पर्सनैलिटी में ग्रोथ आता है। लाइक देखो, दो तरीके से, एक तो निगेटिव ग्रोथ हुआ कि आपका, मैं बोल सकता हूँ कि लोगों को एटीट्यूड आ जाता है कि भाई मेरा तो लिंक्डइन पे हो गया भाई, मेरा तो लिंक्डइन पे, अब तो भाई लाइफ चेंज हो गई, अब तो मैं अलग ही, अब तो मैं अभिनव अवस्थी हो गया लिंक्डइन वाला। हीरो, बट एक तो सेलिब्रिटी वो बन आता है, सेलिब्रिटी बन गया। बट ऐसा नहीं होता यार, मतलब कि आपका बहुत हो गया तो आप बाकी चीजें भूल जाओ। तो पर्सनैलिटी ग्रोथ इस तरीके से है कि लोग आपको एक अलग वे में देखने लगते हैं कि हाँ भाई, इस बंदे ने फोड़ा हुआ है लिंक्डइन, इसमें भी कैपेबिलिटी है।
तो वो चीज आपको, भले ही आपने कितना भी 5 स्टार हो, एक्सपर्ट हो, इंडियन मास्टर हो, नहीं उससे मतलब नहीं है कि आपने आईसीपीसी निकाला हो, जब तक आपके पास जॉब नहीं है एक अच्छी। तो एक थोड़ा सा वो हो जाता है, आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा ग्रोथ आता है। तो ये काफी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था। द नेक्स्ट थिंग जो मेरे लिए मैं बोल सकता हूँ वॉज द टाइम व्हेन आई क्रैक जेई। जब मैंने जेई एग्जामिनेशन क्रैक किया था, दैट वाज द टाइम अगेन कि मेरे को काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एंड उस टाइम मैंने जब जे एडवांस में मेरा क्रैक हुआ था, बट लकली अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिला आईआईटी कोई अच्छा, एंड आई लैंडेड अप टू एसवीटीयू। एंड दैट वाज अनदर अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी आई थिंक। एंड उसके पहले मैं बोल सकता हूँ कि इन टेंथ ऑल्सो, जब मैं बिल्कुल अपने कैरियर को स्टार्ट कर रहा था, दैट टाइम ऑल्सो जब एक तरीके से मेरा इंटरेस्ट आया कोडिंग की तरफ, इंटरेस्ट आया मेरा मैथ्स की तरफ, तो टेंथ में मेरे कंप्यूटर्स में 100 आउट ऑफ 100 आए थे। एंड आई थिंक कि वो 100 आउट ऑफ 100 वहां तो कोई मैटर नहीं किया था टेंथ क्लास में। वो नॉर्मल वहां पे एक मार्क्स थे कि भाई इस बंदे के 100 के 100 आ गए। पर उस उन मार्क्स ने मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस लाया था कि मैं कंप्यूटर्स में कुछ कर सकता हूँ, दैट कॉन्फिडेंस इज द थिंग जो आज यहाँ लिंक्डइन का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। सो वो टेंथ क्लास में आई एम थैंकफुल टू ऑल माई टीचर्स, जिन्होंने उसने मुझे कंप्यूटर पढ़ाया और मुझे मोटिवेट किया। वो 100 आउट ऑफ 100 कुछ नहीं थे। आज के दिन में कोई नहीं पूछने वाला कि तुम्हारे टेंथ में 100 आए थे बोर्ड्स में, कोई नहीं पूछने वाला। बट वो आज जो उसने मुझे मोटिवेट किया कि कंप्यूटर में और करो अभिनव यार, तुम कंप्यूटर कर सकते हो, दैट वाज द थिंग। सो आई थिंक ये मेरे लिए काफी अच्छे एक्सपीरियंस है। वो लाइक एक कहावत नहीं है कि डॉट्स हर जगह का कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट हो जाता है। वही वही डॉट्स हर जगह कहीं ना कहीं मिलके कनेक्ट होता है। तो अभी नहीं याद आता है, लेकिन अब जब लिंक्डइन क्रैक किया था तुमको याद आया कि कहाँ 100 आया था, और वहीं से मेरा मतलब एक तरह से लाइफ चेंज हो गया था। तो वो एग्जैक्टली डॉट्स वही कनेक्ट वही जरूर वही होता है। वही वही वही। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वर्स्ट एक्सपीरियंस सो फार इन योर लाइफ। ओके, सो okay, again for this also I have to think. So worst experience, mm, so I can say this कि वर्स्ट ऑब्वियसली तब होता है जब, आई विल नॉट से वर्स्ट, आई विल से कि जब भी आपके साथ कुछ गलत होता है, सो वहां पे आप कुछ ना कुछ सीख भी रहे होते हो। जब भी कुछ गलत हो रहा होता है, सो जब भी आप फेल होते हो या कुछ भी करते हो, सो आप कुछ ना कुछ वहां पर सीख रहे होते हो, ऑब्वियसली बात है। सो दैट्स थिंग। एंड ऑब्वियसली मैंने भी कई सारे फेलियर्स फेस किए हैं। इट्स नॉट लाइक कि टाई हटाया और लिंक्डइन पे इंटर्न मिल गई, काफी कुछ फेस किया है। सो इट वाज लाइक कि इन स्टार्ट फर्स्ट ईयर में जब कोविड आया, एंड कोविड में वो काफी अच्छा चांस था मेरे लिए कि मैं पढ़ता और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करता। अगर मैं उस समय से सीपी कर रहा होता कोविड के टाइम से, तो आज में भी मैं कैंडिडेट मास्टर या मास्टर होता। बट और मे बी मैं अभी गूगल पे होता या कुछ भी ऐसा बेटर हो सकता था। बट उस समय मैंने लैक किया, जिसकी वजह से मेरा सीपी भी गिरा, मेरा थोड़ा सा चीजें भी लो हुई, और मेरे कॉलेज भी थोड़ा मार्क्स कम रहे, ना तो मेरा कहीं इंटर्न लगी ना कुछ लगी। सो वो मेरे तो काफी वर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैंने खुद अपने साथ मतलब उतना स्टैंड अप नहीं कर पाया। सेम चीज मेरे साथ तभी हुई जब मैंने जेई एग्जाम दिया। तो मेरा जेई फर्स्ट में 98 परसेंटाइल थे, और जेई सेकंड में मेरे दो दो अटेम्प्ट हुए थे, मेरे 94 परसेंटाइल थे। तो मतलब एक तो होता है ग्रोथ ऊपर जा रहा है, बट मेरा उन लॉकडाउन के टाइम पे ग्रोथ नीचे आया था। तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस है। कहाँ मेरे 98 थे, अगर मैं चाहता और अच्छा करता तो मेरे 99 हो सकते थे, तो मैं एनआईटी में होता। बट वो 94 हो गए थे। सो दैट वाज अगेन अ वर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी कि किस तरीके से ऐसा हुआ। एंड अगेन सिंपली ऐसा हुआ मेरे साथ, आई थिंक इन माय स्कूल्स आल्सो, कि स्कूल में भी मैंने काफी ऐसे, सो बेसिकली मैं अभी क्योंकि मैं अभी पढ़ाई से रिलेटेड चीजें ले रहा हूँ, वर्स्ट एंड बेस्ट एक्सपीरियंसेस जो पढ़ाई से रिलेटेड हुए हों, यस जो यस, करियर से रिलेटेड हुए हों, कि हम है लोग ना। इसी की बात ही कर रहे हैं। हाँ, तो मैं उसके रिलेटेड तो एग्जैक्टली सेम मेरा स्कूल के टाइम पे भी हुआ था क्लास 9th में। जब इट वाज लाइक कि थोड़ा सा मेरा ना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, एंड दैट टाइम आई वाज जस्ट, मैं टॉप करता था मैथ्स में अपने क्लास पे, और इट वाज लाइक कि 100 में से 90, फिर 95 98 तक भी नंबर आते थे मेरे 8th क्लास तक। एंड फिर 9th में थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया,
मैंने पढ़ना छोड़ दिया एंड देयर वाज अ टाइम जब मेरे 50 में से 21 नंबर आए थे, मतलब एक नंबर से पास हुआ था मैं। तो उसके बाद फिर अकल आई कि भाई फिर से पढ़ ले, एंड देन आई स्टार्टेड अगेन। एंड देन फाइनली मेरे जब क्लास 10th में 100 आउट ऑफ 97 आए थे। तो फिर से एक बार वो जो कर्व होता है उसे ऊपर ले आना पड़ता है। तो जो वर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, जो वर्स्ट चीज आती है आपके पास, वहां भी आपको काफी कुछ सीखना होता है, वहां आपको डिमोटिवेट नहीं होना होता है। मोटिवेट होगे तब ऊपर जाओगे। और जब आप ऊपर होते हो तब आपको एटीट्यूड नहीं लाना होता है, बहुत ज्यादा ओवर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना होता है, तो फिर आप नीचे आओगे। तो ग्रेजुअली इंक्रीज करो, धीरे धीरे करो। अगर मैं सोचता, मैं शुरुआती लिंक्डइन से होती, मेरी ना हो पाती। धीरे धीरे चले हैं। कोड से कोड से पे काम किया एज अ डाउट सॉल्वर, जेएफजी पे एज अ डीएसए मेंटर, स्टार्टअप्स में काम किया, बहुत छोटे छोटे जगह किया है, सीपी की, यूट्यूब किया, ये किया वो किया, एट द लास्ट 2 साल बाद जाके तब इंटरव्यू। तो इस तरह से चलना होता है। दैट वाज नाइस। तो आपका पूरा पीछे का याद दिला दिया मैं क्वेश्चंस करके। नहीं नहीं, श्योर यार, मतलब ऑब्वियस सी बात है, लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई कोई भी बंदा पहले से स्टार्टिंग में बड़ा नहीं होता है, कि मैं किसी को नहीं पता होता कि जब फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आते हैं तो आपको लिंक्डइन में लगने वाली है कि आप जेफजी मेंटर होगे। आपको बिल्डअप करना पड़ता है और सब लोग कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल। दैट्स व्हाई आई एडिट दिस क्वेश्चन कि लाइक पीछे का कुछ पता चले उन लोगों को कि क्या बेस्ट है क्या वर्स्ट है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक सेकंड लास्ट कि व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान्स, कि अब तो हो गया चलो लिंक्डइन में, नाउ नेक्स्ट फ्यूचर प्लान क्या है? एचआर क्वेश्चन नहीं कि 5 साल बाद कहाँ देखोगे अपने को, जस्ट कि या मतलब 6 मंथ बाद, 1 साल बाद, मतलब कुछ तो होता होगा ना दिमाग में कि चलो श्योर एक श्योर। लिंक्डइन निकल गया। व्हाट्स योर नेक्स्ट? हाँ, सो अभी यार जब तक मैं कॉलेज में हूँ, माई प्लान इज टू अपस्किल माई सेल्फ। क्योंकि अभी मेरे पास जो 2023 के लिए समर इंटर्न है वो मेरे पास है, आई हैव दैट ऑफर। तो अब मुझे एटलीस्ट तब तक के लिए मैं थोड़ा सा फ्री हूँ कि मैं इंटर्न के लिए ट्राई करूँ या कुछ करूँ। तो अभी मेरा प्लान है, जब तक मेरी इंटर्न नहीं स्टार्ट होती है, तो अभी एग्जाम्स के बाद मैं अपने थोड़ा अपस्किल करूंगा। जैसे कि सीपी में भी एक्सपर्ट हूँ तो मैं कैंडिडेट मास्टर जाने ट्राई करूंगा। एंड डेवलपमेंट में मैं और अच्छे लाइव प्रोजेक्ट्स और अच्छे बैकएंड प्रोजेक्ट बनाने का ट्राई करूंगा। सो दैट इज व्हाट जो मैं सोच रहा हूँ इन द साइड ऑफ स्किल, मैं स्किल में करूंगा। बाकी बिकॉज अभी मेरे पास विंटर इंटर्न अपॉर्चुनिटी है, तो मैं भी उस पर इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, अगर मैं ट्रूली बोलूँ तो। बट यहाँ ऑब्वियसली भी तो इंटर्न है, सो मुझे ऑब्वियसली इस इंटर्न के बाद में पूरा ट्राई करना है, पहले इंटर्न में अच्छा काम करूँ और उसके बाद मुझे एक पीपीओ मिल जाए। दैट विल बी माय नेक्स्ट एम, कि मुझे एक पीपीओ फुल टाइम ऑफर मिल जाए लिंक्डइन से। सो दैट इज गोइंग टू बी माय नेम एम। एंड ऑब्वियसली मुझे सिर्फ लिंक्डइन के ऊपर ही एक तरीके से नहीं रहना है, मुझे बाकी भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे फुल टाइम के लिए। तो मैं बाकी भी ट्राई करूंगा कि कहीं और से या जो भी अलग कंपनी से मैं ऑफ कैंपस, उसके लिए मुझे सीएस सब्जेक्ट्स, कोड सब्जेक्ट भी काम ध्यान देना पड़ेगा, जो मेरे भी इतने इतने अच्छे नहीं है, जैसे कि डीबीएमएस हो गया, सीएन हो गया, ओएस हो गया, ओप्स हो गया। इन पे मुझे काम करना पड़ेगा। सो दिस इज माई कंप्लीट, आई थिंक माई गोल टिल 4th ईयर, जिसमें मैं भी एक साल बोले तो एक साल में मैं फर्स्ट 6 मंथ्स में तो मैं बोलूंगा कि मुझे पहले तो सीपी अपनी और अच्छी करनी है। एंड दैट विल बी लास्ट टाइम आई विल डू सीपी। इसका मैं सीपी नहीं करूंगा, बिकॉज 4th ईयर में सीपी करना काफी चीजें और भी हो जाती हैं। आई डोंट थिंक कि सीपी है, बट हाँ मैं अभी 6 महीने में और ट्राई करूंगा सीपी को, कि मैं कैंडिडेट मास्टर हो जाऊँ, प्लस डेवलपमेंट में कुछ और अच्छे फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाने का ट्राई करूंगा। देन इंटर्न के बाद में जब फुल टाइम का टाइम आएगा 4th ईयर में, मैं ट्राई करूंगा कि मैं अपने कोर सब्जेक्ट्स को अच्छा करूं और कुछ एक्स्ट्रा, जैसे मैंने बोला सिस्टम डिजाइन बोली मैंने, वो मैं और अच्छा करूं। और देन मैं फुल टाइम के लिए ट्राई करूंगा। दैट इज गोइंग टू बी माय एम फॉर नेक्स्ट 1 or 1.5 ईयर। सो ऐसे होता है मतलब प्लान, ऐसा नहीं कि अब लिंक्डइन पे आ गए हैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो कुछ करना नहीं भाई, अब बैठना है घूमना फिरना है। तो अभी भी देखो कि कितना मतलब लग रहा है कि एज अ फ्रेशर फिर तैयारी शुरू करनी है। तो यही श्योर, होता है कि मतलब फिर से हमेशा शुरू करना है अपस्किल यार करते रहो अपने आप को। प्लेसमेंट के लिए। तो अभी ये तो जितना मैंने डिजर्व किया इंटर्न का था, प्लेसमेंट के लिए और एक्स्ट्रा, क्योंकि मैंने बोला कि मेरे पास कोर्स जो मुझे नहीं आते हैं, मुझे सिस्टम डिजाइन नहीं आती है, तो मुझे उस पर काम करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज और मैं भूल गया, एक प्लान मेरा और भी है। जो प्लान, एक साइड चीज जो मेरा एज अ कंटेंट क्रिएटर की जर्नी है। तो मैं अपने यूट्यूब के भी थोड़ा अच्छा करना चाहता हूँ, कि मैं यूट्यूब पे 10-15 हजार सब्सक्राइबर तक चला जाऊँ, और अपने लिंक्डइन पे भी मैं अच्छा खासा बेस बना लूँ, फॉलोअर्स बेस। तो ये मेरा एक अलग प्लान होने वाला है कि एक एज अ कंटेंट क्रिएटर में ग्रो कर पाऊँ एक अच्छा सा। एज ए That is पर्सनल going to be my ब्रांड। plan as a person, as a brand, as a brand value sort of thing. Piece. Oh, that was nice. So any advice for the like fellow juniors or seniors like who want to become a entry level software engineer? श्योर यार, तो मतलब मेरी एडवाइस यही रहेगी कि थोड़ा सा, पहली बात तो रिजेक्शन आएंगे,
थोड़ा सा मोटिवेट रहो, और अपना बेस्ट दो। अगर तुम अपना बेस्ट दे रहे हो, चीजें एक्सप्लोर करो, क्योंकि करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ बिना करे हो जाएगा, तो करना पड़ेगा। अब मैं नहीं बोलूंगा कि डीएसए कैसे पढ़ो, डेफ कैसे पढ़ो, या उसमें वो बहुत तुम्हें वीडियोस मिल जाएंगी। डीएसए कैसे पढ़ो, मेरे चैनल पर भी 10 वीडियो मिल जाएंगी, मैंने बना के रखी हुई है। और बेसिकली जब बंदा खुद करता है तभी होता है उसका। तो करना है, बेस्ट देना है अपना, ठीक है। सीपी करो, डीएसए करो, जहां मन हो वो करो, डेफ करो। और मैंने बता ही दिया अभी कि एंट्री लेवल के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो अपना बेस्ट दो। और कभी भी इससे डिमोटिवेट ना हो कि मेरा हो नहीं रहा है या कैसे होगा, होगा एडला सबका। बट अगर नहीं हो रहा है, थोड़ा और अच्छा करो, थोड़ा और अच्छा करो, और अच्छा होगा, ऑब्वियसली बात है। तो यही है। बाकी अभी के हिसाब से थोड़ा सा खराब चल रहा है, बट आगे अच्छा होने वाला है। तो इट्स नॉट लाइक कि कुछ खराब। मुझे भी नहीं पता था, देखो आज से 3 महीने पहले मुझे भी नहीं पता था कि मुझे लिंक्डइन पे इंटरव्यू कॉल आएगा, मैं इंटरव्यू दूंगा, मेरा हो जाएगा। किसी को नहीं पता होता। मैं तो भाई, अगर तुम बात करो ना, मेरा जो अक्टूबर में जो मेरी स्टेट थी वो बहुत ही खराब थी। मैं बता रहा हूँ, मैं मतलब मैंने तुमको भी कॉल किया था कि भाई यस क्या यस तुम्हारा कोई एसडी इंटर्न अपॉर्चुनिटी है क्या, तुम्हें याद होगा रोहित। यस यस। तो मैं भी उस समय बिल्कुल ऐसी स्टेट में था, मैं लोगों को कॉल कर रहा था भाई कि क्या तुम्हारे कंपनी में कोई इंटर्न अपॉर्चुनिटी है, भाई मुझे रेफर कर दे, भाई मुझे ये कर दे, मुझे वो कर दे। मैंने रोहित को भी कॉल किया था। तो मतलब सबका सेम स्टेट होती है यार, किसी को नहीं पता होता कि कब किसको क्या आ जाएगा, क्या मिल जाएगा। बस अपना बेस्ट देना होता है। अगर तुम अपना बेस्ट दे रहे हो तो कुछ ना कुछ मिलेगा। एंड फाइनली भी मुझे मेरी अपॉर्चुनिटी, मैंने किया, मैंने इंटरव्यू किया, एंड मुझे मिल गई जॉब, इंटर्न मिल गई। तो यही है यार, मिलता है अच्छा होता है, बस आपको अपना बेस्ट देना होता है। तो दैट्स ऑल। अगर मान लो मुझे मुझे इंटर्न की कॉल आ जाता कि भाई ओए है, और मेरा डीएससी अच्छा ना होता, मैं ओए निकाल पाता, नहीं निकाल पाता। तो लेट्स से मैं ओए निकाल लेता, क्या मैं इंटरव्यू निकाल पाता, नहीं निकाल पाता। या फिर मैं होस्ट मैनेजर में अपने प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट दिखाई ना पाता। तो मैंने किया था, तब कॉल आई, अपॉर्चुनिटी है, तो उसको उसको क्रैक भी किया। तो ऐसा भी नहीं कि अपॉर्चुनिटी है पर तुम क्रैक क्रैक ही ना कर पाओ। तो क्रैक भी जो करना है उसके लिए तुम्हें अपनी स्किल्स अपग्रेड करनी पड़ेंगी। लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी नहीं है, जॉब ही नहीं आ रही है, डिसीजन चल रहा है। अरे भाई पहले स्किल्स तो इम्प्रूव कर लो, कि अगर अपॉर्चुनिटी आए तब भी क्रैक तो कर पाओ। नहीं, मान लो ओपनिंग्स आ गई और तुम क्रैक ही नहीं कर पा रहे हो, स्किल्स इम्प्रूव करो अपने। जैसे दैट आज विल, 1000 कंपनी तो एटलीस्ट 100 कंपनी तो हायर कर रही है। वही वही है। ऐसा देखो, ऐसा नहीं है कि सब बंद है। देखो मैं तो बोलूंगा यार, ऐसा भी नहीं सब बंद है, लग रही है लोगों की। मेरी लगी, बाकी तुम देखिए लिंक्डइन पे लोग डाल रहे हैं, ऐसा भी नहीं, थोड़ा कम है, दस कम परसेंट ही है, लेकिन लोग डाल रहे हैं। डाल लोगों रहे की जॉब लग रही है एट द लास्ट। तो मैंने बोलूंगा टॉप कंपनीज में, लेकिन हाँ, स्टार्टअप्स में हायरिंग शुरू है, काफी जगह हायरिंग शुरू है। रिमोट जॉब्स, छोटी मोटी जॉब्स, इतना ज्यादा पैकेज नहीं, बट हाँ है, एक्सपीरियंस के लिए आपको मिल ले सकते हो। तो मतलब अपनी स्किल्स आप बढ़ाओगे तो आपको लगेगी, पक्की बात है। स्किल्स तो रहेगी तो एटलीस्ट जॉबलेस नहीं रहोगे। एटलीस्ट आपको छोटी मोटी, या अगर चलो नहीं भी है अभी जॉब, तो जब एटला जब हाँ। रिसेशन खत्म होगा, जब जॉब्स आएंगे तो आप स्टैंड कर पाओगे ऊपर। थैंक यू वेरी मच अभिनव, लाइक पूरा अच्छा सा एक पॉडकास्ट बना। एक और पॉडकास्ट है अभिनव के साथ जहाँ पे हम लोग ने सीपी की बात करी है कि किसी को सीपी पढ़ना है तो कैसे पढ़े स्क्रैच से। थैंक यू वेरी मच अभिनव, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। पीपीओ मिले फिर पार्टी होगा तुम्हारे तरफ से। थैंक यू वेरी श्योर मच। श्योर श्योर रोहित, मतलब आई एम ऑल्सो एमिंग फॉर दैट, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। बाय।